Hello and good morning, you beautiful people. I hope you all are doing good. Let's begin for the day, and I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series presented you by Alphais Academy. Okay, so the first news we have today is of synthetic biology. Synthetic biology is nothing, ठीक है. Actually, the center is working on a national policy on synthetic biology. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि रोज़ ही एक नई पॉलिसी आ रही है. परसों भी पड़ी थी, कल भी पड़ी थी, आज फिर एक नई पॉलिसी आ गई. कोई बात नहीं, 5,500 IAS हैं तो कोई ना कोई तो पॉलिसी बनाएगा ही. ओके, सो वी हैव दिस एंड एज अ पार्ट ऑफ द 12th 5 plan which was later scrapped by the BJP government in 2014. The actually the plan continued, last plan continued, but after that there was no new plan. So India has set up a task force then on biology and synthetic biology research. Now our main concern is what is synthetic biology. Synthetic, by the name itself, suggests that it is not natural. Okay, so it refers to science of using genetic sequencing. देखो जीन्स क्या होता है ना, ये हमारा क्रोमोसोम हुआ, इसमें जीन्स होते हैं. जीन्स क्या होते हैं? जो DNA होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ मेड अप ऑफ ATGC, adenine, thymine, guanine, cytosine. And what is RNA made of? AUGC, adenine, uracil, guanine, cytosine. Only the difference is T and U. In DNA there is thymine, in RNA there is uracil. So ऐसी क्या होता है ना, जो सीक्वेंस होता है, देखो सीक्वेंस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. ऐसा होता है RNA DNA का सीक्वेंस, ATGC TTTTT and these are like 30,000 40,000 ऐसे, मतलब बहुत आगे हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक सीक्वेंसिंग. ओके, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड जेनेटिक एडिटिंग. अब क्या हुआ कि ये जो ATGCC में CCT हमारा ख़राब हो गया. ठीक है, ये वाला सीक्वेंस हमारा ख़राब हो गया. तो देर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड एज CRISPR-Cas9. ओके, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसे यहाँ से काट देंगे और यहाँ हम नया CCT लगा सकते हैं. See, the level of technology we have reached to. Okay, so this is called a genetic editing, and the genetic editing, and what we have done is that we have modified this sequence. तो genetic modification के बारे में है, to create unnatural organism or organic molecule that can function in living systems. Okay, so this is the level of biotechnology we have reached to. And synthetic biology make the uses of genetic sequencing, editing and modification. Now its uses are, this is very important in mains perspective, you can always make this kind of diagram. Synthetic biology बीच में लिखा, तो what are is adjoining areas? Computer science, physics, engineering science, chemistry, agriculture, microbiology, molecular biology, bioinformatics. देख रहे हो बायो में ही कितनी फील्ड है. तो this is how you can collect your answers in mains. Okay, now there is a Krishna water dispute. Okay, now first of all see this map out here. ठीक है, Krishna river is passes through it, originated in state of Maharashtra. Okay, from somewhere here, महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महाबलेश्वर से ये निकलती है. तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, then you have Andhra Pradesh, Telangana, and then you have Andhra Pradesh. These are the 4 states through which the Krishna river passes. Okay, so there is always a dispute between the states regarding the distribution of water. Okay, so अब कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. मैंने आपको बताया कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, सतारा इन महाराष्ट्र. सिरासिलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में. तो एक रिजर्वायर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं कहीं पे. ठीक है, और नल्लामल्ला हिल्स में है. ठीक है, नल्लामल्ला, पल्लीकोंडा, जवाड़ी हिल्स, दिस आर इन ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, द Sri-Salem reservoir is constructing across the Krishna river in Andhra Pradesh. Okay, and due to this there is a continuous tussle between the states regarding
द शेयरिंग ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ विल सी इट्स ट्रिब्यूटरी, ट्राई टू रिमेंबर, देखो तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी तो है, बट आई वुड रिमेंबर एक बार पूछ लिया था राइट बैंक लेफ्ट बैंक करके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होता जा रहा है यूपीएससी। तो आई जस्ट क्विकली, तुंगभद्रा, देखो ज़्यादा जो है ना इसकी कृष्णा की जो ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट बैंक के हैं। इनफैक्ट जो ये सिरासलम जो जगह है वो भी राइट बैंक में ही पड़ती है इसकी, फॉर जस्ट अ फैक्ट, यू नो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा, ओके, एंड घटाप्रभा, दीज आर यू नो जो बड़े बड़े प्रभा वाली, भद्रा, प्रभा, ये कोयना, भीमा, ये सब जो है राइट बैंक है। येरला, बल्कि दिस वर्ना इज ऑल्सो राइट बैंक, येरला इज लेफ्ट बैंक, डिंडी, मूसी इज लेफ्ट बैंक, दूध गंगा इज आई थिंक, नहीं, इट इज द राइट बैंक। सो आई जस्ट टेल यू व्हाट राइट बैंक इज, लाइक वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घटाप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, श्रीशैलम एंड Varna. Rivers are its right bank tributaries. Left bank tributaries are Doni, Bhima, Dindi, Musi, Muneru, Yella. And you know what try to do is like remember, जैसे इसकी लेफ्ट, एक लेफ्ट बैंक इम्पोर्टेंट है बट भीमा भी है। ट्राई टू रिमेंबर 3 4 4 4 राइट, 4 राइट, 4 लेफ्ट, तो यू कैन एलिमिनेट योर आंसर इन प्रीलिम्स, ठीक है। दिस इज वेयर एलिमिनेशन कैन हेल्प यू, बट इफ यू विल नॉट नो इवन अ single tributary, you will not be able to eliminate in the exam, okay। now purple revolution, it is related to lavender। lavender क्या होता है, फूल होता है, बड़ा खुशबू वाला फूल होता है, जाके एक बार कभी सूंघ के देखना उसको, मस्त होता है वो एकदम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वो किया है, उनका एक प्रोग्राम है CSR अरोमा करके, उसमें चला रहे हैं। वी आर कंसर्न इज विद लेवेंडर, इट इज़ कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, नेटिव टू मेडिटेरियन रीजन का ये नेटिव है। इसका यूज़ जो होता है वो धूपबत्ती, अगरबत्ती बनाने में ये होता है, इंसेंस स्टिक्स बनाने में होता है। लेवेंडर ऑयल आता है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज हाइड्रोसॉल, ठीक है। आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ फ्लावर, you know, byproduct is made that is called hydrosol, and it is used to make soaps and room fresheners, ठीक है। Now there is something called as active galactic nuclei, ठीक है। I'll tell you what is active galactic nuclei. This is your galaxy, ऐसे ऐसे दिखता है ना, this is your galaxy, ठीक है। जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में ना ब्लैक होल होता है एक, ठीक है, ब्लैक होल होता है जहाँ से कि बहुत सारी पार्टिकल्स एमिट होते हैं। Now this is called as active galactic nuclei. Now there is something called as blazars and quasars, okay। कुछ नहीं होता, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्वाजार जो होते हैं वो ज़्यादा चमकीले होते हैं, दे आर मोर ल्यूमिनस। ब्लजार्स जो होते हैं वो थोड़ा कम ल्यूमिनस होते हैं, और इनके जो पैटर्न होता है ना वो भी, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि ये गैलेक्सी का बीच है, मतलब हम ये एरिया देख रहे हैं अभी, सिर्फ बीच का एकदम सेंटर, ठीक है। तो ब्लाजार्स में क्या होता है, जो रोटेशन होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली एंगल ऑफ जेट या स्ट्रीम, भाई अभी ये पार्टिकल एमिट कर रहा है तो एक स्ट्रीम निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो क्वाजार में जो स्ट्रीम होती है वो ऐसे घूमती है थोड़ा सा, सॉरी ब्लाजार में जो होती है ऐसे घूमती है अंदर ही अंदर, ठीक है। अगर आप इसको प्लेन पे लेंगे तो ऐसे दिखेगा ऊपर से आपको, ठीक है। बट जो क्वाजार होता है उसमें जो एंगल होता है वो कुछ, जब आप प्लेन पे देखेंगे उसको तो ऐसे दिखता है, सॉरी आई विल मेक इट फॉर यू अगेन। इफ दिस इज द प्लेन, दिस इज हेयर वेयर द ब्लैक होल इज देयर, सो क्वाजार की जो डेड स्ट्रीम है वो कुछ, सो आई एम नॉट एबल टू, सॉरी फॉर द डायग्राम्स, आई एम नॉट, दिस थोड़ा इंक्लाइंड सा एंगल निकलता है ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाजार, ऐसे ये ऐसे इमिट हो रहा है, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक इन दी यू नो गूगल ऑल्सो अ डायग्राम, ठीक है। ब्लाजार क्वाजार क्या होते हैं, ठीक है, होते एक टाइप के ब्लैक होल ही हैं, ठीक है। और इससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं जेट्स बोलते हैं। तो जो जेट्स होता है, जो एंगल होता है उसका, उसी हिसाब से क्वाजार और
प्लस आर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. नाउ सम कमिंग टू दिस शॉर्ट न्यूज़. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग होनी है जिसको इंडिया ने होस्ट करने के लिए बिड जीत ली है. 2023 में होगी वो. ठीक है. सी इंडिया इज ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम not important from prelims point of view, but from the IR point of view it is very important. So International Olympic Committee was created in 1894. Okay, it is a non-governmental sports organization and it is situated in Switzerland. Munich Security Conference is nothing. बहुत सारे लोग आते हैं. ठीक है. और डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं है ये, ना किसी कोई वो बाइंडिंगनेस है. ठीक है. बस एक टाइप का, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि आते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे और चले जाते हैं. ठीक है. मोस्ट जो है, मुझे पता ना, छोटे छोटे वो होते हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी हाउ मोस्ट लुक लाइक. तो दे आर वेरी वाइटल इन पॉलिनेशन. ओके. Not only in Himalayan ecosystem but also in other ecosystems. ठीक है. So moths are nocturnal pollinator. क्या होते हैं, वो रात को pollination करते हैं. ठीक है. तो this is the important fact about them. And they fly mostly at night. Okay. pollination में help, बस दो ही चीज़ें देखो, pollination में help करते हैं और रात को fly करते हैं, और nocturnal pollinator हैं वो. International Major Language Day. It is a initiated by UNESCO. The idea to celebrate this kind of day was originated from Bangladesh and it promote multilingualism. ठीक है. कि भाई देखो, एक आपस में हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर एवरीबडीज लैंग्वेज, फॉर एनी लैंग्वेज. ठीक है. बी इट ऑफ एनी रीजन, बी ऑफ इट एनी कम्युनिटी. ओके. सो to promote that feeling of respect, mutual respect, this kind of days are important and this kind of awareness is important. So the person in news was Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. उनकी 150th birth anniversary थी. What he did was that he found Gaudiya Math and a mission in Puri is in Odisha. Okay. Gaudiya Math is a monastic, मतलब मोनोइज्म को मानता है, सिर्फ एक भगवान है और वो भगवान विष्णु जी हैं. दैट गॉड इज़ विष्णु जी. ठीक है. एंड ही फाउंडेड गौड़िया वैष्णविज्म. वैष्णविज्म इज़ द सेक्ट और द पीपल हु बिलीव्स इन विष्णु एज गॉड एंड द पीपल हु बिलीव इन शिवा एज गॉड आर कॉल्ड शैवाइट्स. तो ही बिलीव्ड इन द टीचिंग्स ऑफ वैष्णव सेंट चैतन्य महाप्रभु. ना देखो, चैतन्य महाप्रभु कब थे? 15th सेंचुरी होता है 1400 समथिंग. ठीक है. तो इस तरीके से आप याद रखा करो, चीज़ों को रिलेट किया करो. तो एक अभी कभी पूछ लेंगे कि भाई ये से कंटेम्प्रेरी थे या नहीं थे, तो अब आपको याद रहेगा. ये बल्कि क्वेश्चन आया भी था मेरे ख्याल से कहीं कि चैतन्य महाप्रभु, अगर आपको ये पता होता ना कि चैतन्य महाप्रभु कब जीवित थे, तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ उसी फैक्ट से बना लेते. तो दिस इज़ हाउ द एनिमेशन टेक्निक्स वर्क. So Chaitanya Mahaprabhu was a bhakti saint in 15th century, and what he did, that this Krishna was the supreme soul and worship him. So that will be all for today. I wish you a very happy day. Take care and we shall see you tomorrow. Thank you.